For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Akash Deep sir with us, the author of Dive in the Depth. Thank you so much sir for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. My pleasure, Gaurav. I'm very thankful कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बुक के बारे में और अपने बारे में, अपने राइटिंग जर्नी के बारे में आपसे बात करूं. We are truly honored, sir. So, sir, before we get into the podcast और हम आपके बारे में, आपकी बुक के बारे में और सारी चीज़ें जाने, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और कुछ जान सकें और please let us know about the journey कि कब आपने सोचा कि नहीं मुझे अब एक बुक लिखनी है. जी, तो मेरा नाम है आकाश दीप. मैं एक शेड्यूल कास्ट फैमिली से आता हूँ और बचपन से ही मैं बहुत क्रेजी टाइप का किड रहा हूँ और मेरी ज्यादातर बचपन सारा जो है खेल कूद और मस्ती करने में निकला. लेकिन अराउंड टीनेज समथिंग हैपेंड इन माय फैमिली जिससे कि काफी मेरे बिहेवियर और सोसाइटी के प्रति परसेप्शन में काफी चेंजेस आए और काफी रियलिटीज दिखी समाज की जो आज भी हमें दूर करनी चाहिए. तो बेसिकली हुआ ये था कि इट वाज जस्ट अबाउट द अपर कास्ट लोअर कास्ट फाइट इन एन ऑफिस, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. और उस वजह से जो है मैं शायद 15 साल का रहा हूँगा, स्कूल में था तब. तो वहां से कई ऐसी चीजें हुई कि जिससे कि लाइफ में काफी रियलिटी स्ट्राइक हुई समाज के बारे में और दिमाग जो है खेल कूद से हटकर सीरियस चीजों पे लगा. तो वहां से मुझे काफी मैं हर्ट था और फैमिली सिचुएशन देख के काफी चीजों से डील कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसे डील करना है. ना मुझ में उस टाइम इतनी समझ थी या क्या था. तो मैं जस्ट अपने थॉट्स जो है वो लिखना शुरू कर दिया था. जैसे एक डायरी लिखता है कोई अपनी रोज की, वैसे मैं रजिस्टर के पीछे, अपने स्कूल के रजिस्टरों के पीछे बस लिखता रहता था जो मेरे मन में आता था. उससे मुझे बस एक ये संतुष्टि मिलती थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई दोस्त है, कोई साथ दे रहा है और उससे एक राइट पाथ पे जाने का जरिया निकलता था, ना कि ये कि कुछ गुस्से से करो या कुछ करो. काफी चीजें लगती थी कि नहीं, अगर सही तरीके से चला जाए लाइफ में और तो आप किसी भी चीज से आगे बढ़कर आगे कामयाबी पा सकते हैं. बेसिकली एक आउटलेट वो मेरे को ऐसा मिला जिससे कि लाइफ के ऐसे मोड़ पे जहाँ पे काफी चीजें खत्म थी, वहां से मैं आगे बढ़ पाया अपनी फैमिली के साथ और आज आपके साथ हूँ इस पॉडकास्ट में. That's truly inspiring, sir. So, sir, as you know, that book is released and is performing really well on Amazon. I just saw. But from a reader's perspective, like after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बुक को खरीदना चाहेंगे. So, उनके लिए like what they can expect from a reader's perspective, what they can expect from this book. Can you share some insights book का? जी बिल्कुल, sure. So, on a perspective where what the reader will get from this book is कि overall all the poems that are in this book compiled together are about learning about the human nature, how our human nature is formed and changed and evolved and sometimes devolves according to the societal perception of a human being, whether on a basis of caste, creed, color, religion, and or on the basis of gender. The poems in the book are not on any particular religious or caste-based thing, but on a thing that every individual in our society is, as a human, equal to others and should be given equal respect and not discarded just because
several things that we as a society think that they should be discriminated for or not for. So it's more about an equality thing, and it's more about how human nature, develops or de-develops a society. So it can become a good one or a bad one, or how some things can hinder the development of a society into being the righteous one, or how too much capitalism or materialism can destroy a society. I mean, even how, children growing up these days, what kind of society they will get if they don't even understand the basis of human nature and how it is formed. So basically, it's like diving into the depths of humanity, of our mind, of our conscious and subconscious thoughts, how to take our righteous decisions, not going for the bad things just because it's easy for someone, not going for bad things just because it can give you materialistic pleasure, just doing the right thing, being a righteous human being. I think if any of us believe in God, that's what God wants us to be, a righteous human being, and not being bad to others, or not being like hurting others to get ahead. It's just knowing about ourselves as much we can and be the best part of ourselves. Just do the right thing. Definitely. That's really true. In fact, अगर सारे लोग इन सारी चीजों को फॉलो करने लगे तो जो जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है या फिर लोग एक दूसरे को जो हर्ट करते हैं, that's completely gone from this. पर दिक्कत भी यही है कि ये चीजें लोग ज्यादातर ना सुनना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बोरिंग हो जाती हैं। कि यार ये स्कूल का चैप्टर चल रहा है क्या? बट द पोएम्स आर नॉट स्कूल के चैप्टर, और कभी वो वाली बुक्स लिटरेचर वाली जो कोर्स में आती हैं, ये पोएम सारी इंसिडेंट्स पे हैं जो मेरी लाइफ में हुए हैं, जो आपकी भी लाइफ में हुए होंगे, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे। जरूरी नहीं है मेरा किसी एक जने के साथ हुआ है तो आपका भी ऐसे ही किसी जने के साथ हुआ होगा। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हैं यार, आपके भी होंगे। बिल्कुल। आपके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज होंगे, मेरे भी होंगे। अलग अलग होंगे पर होंगे, अलग अलग फॉर्म में होंगे, अलग अलग लेवल पे होंगे, अलग अलग सिवियरिटी पे होंगे। उनसे अगर हम डील अच्छे से कर लें तो एक तो ये मेंटल हेल्थ जो है वो सबकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और वो अच्छी रहेगी ना तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन जो एक जना दूसरे की करता है ना, वो इसलिए करता है कि हम खुद इनसिक्योर होते हैं अपनी कमियों को जानने के बाद, और हम नहीं चाहते यार दूसरा हमें वो दिखा दे। तो दूसरे को ऐसे कर दो कि हमें कुछ ना कह पाए, उसको वो कर दो पहले। तो बेसिकली ये ऐसे लोग ज्यादा नीड में है मेंटल हेल्थ केयर करने के लिए अपनी, ताकि वो जिसपे उत्पीड़न हो रहा है। और मैं यहाँ पे बार बार क्लियर कर दूं कि ये कास्ट या रिलीजन पे नहीं है, ये ओवरऑल है कि देखो बहुत सारी चीजें होती है। कुछ जात पे होता है, कुछ धर्म पे होता है, कुछ पैसों से होता है, अमीर गरीब, इनफैक्ट कुछ आपके काम से होता है। हाँ बिल्कुल, ये बुलिंग ही है, ओवरऑल बुलिंग ही कह दो इसको। किसी भी तरीके की हो सकती है, बिल्कुल। और अलग अलग जनों पे अलग अलग असर पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते उसने एक चीज आपको कही, आपने हंसी में उड़ा दी, हो सकता है आपके साथी को कहे उसे बहुत बुरा लग जाए। इन चीजों के लिए बातें करना उतना नॉर्मल जिंदगी में भी नहीं हो पाता। तो इट्स बेटर एक लिटरेचर का प्रोडक्ट हो, जिसको इच्छा हो वो पढ़े, उससे वो समझ पाएगा कि ये रेगुलर लाइफ की इतनी सारी चीजें हैं, और अपने आप खटकेगी रीडर के दिमाग में, अरे यार ये तो सेम सी चीज बात कर रहा है, मैंने इस बारे में ऐसे कभी सोचा ही नहीं। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और हंस के टाल दो तो भाई कुछ भी नहीं है। So sir, what's upcoming next? Like what we can expect more from you? You want to experiment a bit on other genres as well, कि आप इसी genre में और लिखना चाहते हैं? Like what's in the pipeline? ये सही क्वेश्चन पूछा आपने।
क्योंकि इसकी मुझे भी जरूरत थी। थोड़ा टॉपिक से भी हटेंगे, ज्यादा सीरियस हो रहा था, तो फ्रॉम वन सीरियस टॉपिक टू नॉट कॉमिक टॉपिक बट अ हॉरर वन। नेक्स्ट बुक जो होगी वो पोएट्री या लिटरेचर जो भी होगा वो मेरा फिक्शन एंड नॉन फिक्शन मिक्स होगा, बट एक डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी और हॉरर के स्टाइल में, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद होती हैं। तो मैं उस पे भी कुछ लिटरेरी वर्क करना चाहूंगा, और कुछ मैं अपनी शॉर्ट फिल्म्स अपने वीडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ भी बना रहा हूँ। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो रीडर्स अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। So, sir, like, how do you see yourself as a brand? Like, most of the authors are, just working to create an impact on their readers' mind. कि ठीक है, अगर आज से एक साल बाद, 2 साल बाद अगर कोई देखता है, क्योंकि it's a book by आकाश सर, तो what sort of impact you want to create कि उनके माइंड में आए कि अच्छा ठीक है, आकाश सर की बुक है तो ऐसी होगी? Is there any sort of strategy going behind that, या फिर अभी तक आपने सोचा नहीं इस बारे में? इस बारे में कभी अपने आप को ब्रांड के तौर पे देखने का तो खैर कभी मैंने इतनी आगे तक का नहीं सोचा, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। मैं हिप हॉप आर्टिस्ट भी हूँ और काफी सारे सॉन्ग्स भी बनाए हैं मैंने, वो भी आपको स्पॉटिफाई वगैरह पे मिल जाएंगे काफी सारे। तो मैं ब्रांड तो कहना पसंद नहीं करूंगा, बट एक इमेज अगर मेरी किसी भी लिसनर या रीडर या कोई भी अगर व्यूअर है वो देखे, तो उसे एज एन इंडिविजुअल ये पता हो सेकंड टाइम जब भी वो मेरा कोई भी कंटेंट देखे कि एक राइचियस बंदा है, हिपोक्रेट नहीं है। हिपोक्रेसी से मुझे बहुत नफरत है। अगर मेरे को कोई गलत समझता है तो भाई पूरा समझ लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि टाल मटोल करके कि मैं फिर उस चीज में घुसूंगा कि मुझे क्यों मत समझो। भाई अगर जैसे मेरे परसेप्शन है लाइफ के बारे में, आपके भी हैं, जरूरी नहीं मैं आपको उतना ही पसंद आऊं जितना आप मुझे आ रहे हो। बिल्कुल। पर मेरे लिए इन मामलों में सब बराबर है, और जो मेरे रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, 100 अगर कह रहे अच्छे हैं, 30 कह रहे नहीं है, तो वो 30 की भी मैं सुनूंगा। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे तो मैं बहुत ज्यादा पसंद करूंगा बाकी 100 से, जिन्होंने ये 30 जनों ने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करा है मुझे। अगर मुझे लगेगा हाँ मुझ में ये कमी है और मैं अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए ये चीजें अपना के आगे अपनी आर्ट में, लिटरेचर में और गानों में डाल सकता हूँ, तो मैं जरूर इम्प्रूव करना चाहूंगा और मैं थैंकफुल होऊंगा हमेशा ऐसे लोगों का। बट ये भी है कि क्रिटिसाइज करने वाले ही कई बार जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें नहीं पसंद यार ये चीजें। बिल्कुल। जैसे अब मैं ह्यूमन नेचर और ये डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग टाइप की हटाने की बात करूं, वहीं पे बॉम्ब लग दी है मैनू वाली, तुम्हें चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? तुम वही देखो फिर जाके, यहाँ पे आके मत बताओ ना मुझे कि मैं ये बनाऊं। वो वाली बात है। तो बेसिकली कभी ठीक है, वो आर्टिस्ट की अपनी एक इमेज है, वो वहां पे सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दैट। वो भी एक हसल है, हर एक से नहीं होता। मुझसे कहोगे वैसे कर लो, मुझसे नहीं होगा भाई। सही बात। हर एक का अपना एक वो होता है, जरिए और जॉनरा होता है, जिसमें वो अच्छी तरह से अपने आप को जो है जाहिर कर पाता है। और जिस भी तरीके से आप बेस्ट अपने आप को जाहिर कर पा रहे हो तो ही आप आर्ट में अपना बेस्ट दे पाओगे, ना कि किसी का देख के या कुछ ट्रेंड पे जाके या आजकल हैशटैग्स कौन से चल रहे हैं वैसा कर दो, क्योंकि वो तो फिर अगले दिन बदल जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे क्या दोबारा करने बैठोगे। तो इमेज की यही बात है बस, इट जो है अपना नॉन हिपोक्रिटिकल और राइचस ये हो, और by my mother's blessings and God's blessings and आप लोगों की blessings, अभी तक यही इमेज है। इसको आप ब्रांड कह लो, इमेज कह लो,
व्हाट आई आकाशदीप पर्सनली कहना। फील सर कि अगर कोई चीज़ हमें लेट्स नहीं पसंद है या जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं, बट अगर हम उस चीज़ को अगर प्रेशर में करते हैं ना, तो फिर जो आउटकम निकल के आता है लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। जो एक वो बॉन्ड होता है, जैसे लेट्स से कि अगर आपको हॉरर पसंद है, आप हॉरर लिख रहे हैं, तो लोग उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। बट अगर आपको लेट्स से कि कॉमेडी नहीं पसंद है, बट बस आप मासेस को अपील करने के लिए अगर कॉमेडी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन होता है, वो जो ऑथेंटिसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही एग्जांपल दिया आपने, और ऐसा ही होता है एक आर्टिस्ट के साथ। डेफिनेटली सर। सो मैं यही, हाँ हाँ बताएं सर प्लीज। नहीं, मैं बस आई एग्री विद व्हाट यू सेड। काफी सही बात बोली है आपने, और सबको ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि जबरदस्ती जो है उससे आर्ट नहीं होती। हाँ, उससे वो कभी नहीं निकल के आता जो असल में जो आप कहना चाह रहे हैं, और या जो सुनने वाले को सुनना चाहिए आप जो कह रहे हैं, उससे एक मिली जुली चीज निकल के आती है जो मीडियोक्रिसिटी में चली जाती है। और वो उससे ना आप खुश होते हैं, ना आप संतुष्ट होते हैं अंदर ही अंदर, और ना वो रीडर को या लिसनर को इतना कैप्टिवेट कर पाएंगे। So, sir, my next question to this podcast is like, do you feel competitive, like a sort of neck to neck competition in this industry, like because publishing बहुत easy हो गई है आजकल, Kindle publishing आ गया है, self publishing है, या फिर बहुत सारे publication houses खुल गए हैं। So what sort of competition do you feel in this industry, like कि बहुत ज़्यादा competition है, stand out करना बहुत difficult है, या फिर you are someone who feels कि creativity में कोई competition नहीं होता, because हम अपने day to day life में तो competition हर चीज़ में अपने job में, अपने career में कर ही रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ होती है राइटिंग या फिर जिसमें आदमी क्रिएटिव रहता है, तो वहाँ पे भी वो नंबर्स की गेम में नहीं फंसना चाहता। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो, इस पे मेरा सोचना तो ये है कि काफी सही बात है जो अभी आपने बोली, लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल जो जमाना चल रहा है, आजकल जिस डेवलपमेंट के फेज से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे आप ये देखो कि आर्ट की फील्ड है कोई सी भी, चाहे पेंटर्स की हो, चाहे राइटर्स की हो, चाहे सिंगर्स की हो, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की हो, कुछ भी हो, अब कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड है, उसमें अगर आप एज अ प्रोफेशन चल रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल चल रहे हैं, उसको आप अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, उससे आप अपनी जीवनी कमाना चाह रहे हैं, तो जो 95% रेवेन्यू जो भी आ रहा है या जो पैसा आ रहा है ना, वो बस 5% लोगों के पास जा रहा है। बाकी के 95% है मेरे जैसे, मेरे से थोड़े बड़े भी होंगे, लेकिन जो ओवरऑल आप एक देखेंगे कि पैसा कौन कमा रहा है और कौन नहीं कमा रहा, तो 5% जो आर्टिस्ट है उनको आप अलग ही करके देख सकते हैं, चाहे ऑडियो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वीडियो प्लेटफॉर्म हो, चाहे बुक्स हो, उनको आप अलग कर दो, तो जो बचा हुआ पैसा वापस आ रहा है लोगों के पास, आर्टिस्टों के पास, वो बहुत कम है। कंपटीशन नेक टू नेक तो क्या है, अबव द नेक ही है लोगों के लिए, और इतना ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, और जैसे आपने कहा कि ईज भी बहुत हो गई है पब्लिशिंग की, हर चीज की, वीडियो की, ऑडियो की, लिटरली चीजों की और आर्टिस्टिक पीसेस की, इतनी ज्यादा ईज हो गई है डिस्ट्रीब्यूट करने का और बेचने का, कि जहां पहले 100 में से 5 आर्टिस्ट निकलते थे, आज 100 में से 110 निकल रहे हैं। हर दिन आपको लाखों आर्टिस्ट मिल जाएंगे नए आते हुए, इतनी ईज हो चुकी है प्लेटफॉर्म्स की हर जगह। उस चीज से एक ये भी है कि कंटेंट जो है मेरे हिसाब से वो मीडियोकर ज्यादा होता है, और जो असल चीज बाहर आनी चाहिए कभी कभी वो भी छुप जाती है एक भीड़ में। तो जो ज्यादा अच्छी चीज होती है वो कई बार लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती इस चक्कर में। और इतनी ज्यादा डिजिटाइजेशन और ईज के बाद, और इतने ज्यादा पब्लिशिंग हाउसेस जैसे आपने बताए खुल गए हैं, और Amazon Kindle हो गया है,
और अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी हो गई हैं। इनसे ये भी हो गया है कि सारे लोग इतने ज्यादा मात्रा में इन पे गए हैं कि एवरीबडी इज ट्राइंग कि यार मेरे पास पैसा अब आए मेरी आर्ट से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो टॉप 5% में ही सारा आ जाता है, तो आप वहां तक पहले पहुंचने की कोशिश करोगे, फिर जोर अपना पूरा लगा के। वहां तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो एक आर्टिस्ट पे ना प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ गया आजकल की इस चीज से, जो कि पहले हो सकता है इतना नहीं हो। अगर इस वे में लें कि खाली डिजिटाइजेशन से एक आर्टिस्ट पे क्या प्रेशर पड़ रहा है एक्सेसिव, जो कि उसका काम नहीं है करना। उसका काम है अपनी आर्ट को दिखाना लोगों को, या सुनाना, या पढ़ाना। उसका काम अब आजकल देखोगे आर्टिस्ट जो है वो 5% आर्ट करता है, 90% आपका 95% वो मार्केटिंग में लगा हुआ होता है। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी कई कई महीनों की होती है, वो जो काम किया होता है वो 10 दिन में कर देते हैं। तो फिर ये भी एक सैड सी चीज है, मतलब अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कहते हैं ना जमाने के साथ आगे बढ़ो। वही बात है। अब जो बढ़ेगा भाई वही कुछ कर भी पाएगा, नहीं तो फिर बैठो, नहीं तो पिछड़ तो जाओगे फिर, क्योंकि और तो करेंगे ही। बट मेरा मानना बस ये है कि चाहे जो भी हो, ठीक है, आप हमें सब करना चाहिए, जितना जोर हम लगा सकते हैं, जितनी आर्ट हम अच्छे से आगे लाने के लिए कोशिश अपनी सारी हर तरीके से कर सकते हैं वो करनी चाहिए, सही वे में करनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी आर्ट को, अपनी राइटिंग को या अपने सॉन्ग्स को जो है ना वो जल्दबाजी करके बनाए। क्योंकि उससे वही बात होगी जो कुछ टाइम पहले हम दोनों ने बात की थी, कि वो फिर उससे एक आर्टिस्ट भी जो है सेटिस्फाइड नहीं रहता, और सुनने वाले या पढ़ने वाला भी ना कनेक्ट नहीं कर पाता। उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता वो लगता है टाइम टेबल है, टेस्ट देने, अपना रट्टा मारा दे दिया, रट्टा मारा दे दिया, वैसी वाली चीज हो जाती है, उसका कोई मायने नहीं रह जाता। और ये इतने ज्यादा, एक तरह से कह लो, इतना ज्यादा प्रेशर जो मार्केटिंग का और ये सब चीजों का आजकल है ना, ट्रेंड्स का, हैशटैग्स का, मार्केटिंग का आर्टिस्टों के ऊपर, उस वजह से ये है। देखो मेंटल हेल्थ जो आर्टिस्ट की है वो काफी होती है खराब। सही बात। और अभी भी ये स्टिग्मेटाइज्ड चीज है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे से, मैं रहेगी ये बात कहनी कि भाई बुक किस बारे में है, पोएम्स किस बारे में है, तो ह्यूमन नेचर के लिए बेसिकली डाइव इन द डेप्थ्स इन ह्यूमन नेचर इसलिए ही है कि जो मेंटल स्टिग्मा है ना उससे हटके एक नॉर्मल चीज लेके चला जाए कि भाई हमारा व्यवहार किसी को कैसे अफेक्ट कर सकता है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। 100 बात की एक बात ये है, व्यवहार अपना अच्छा रखें, आप भी शांत अच्छे से रहेंगे, अगला भी खुश रहेगा। जानबूझ के कभी किसी को नहीं परेशान करना, आपका व्यवहार सही रहेगा, अगले का अगर नहीं भी मूड ठीक होगा तो यार आपके व्यवहार से अगर वो ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, ना कि अपने खराब व्यवहार से औरों की जिंदगी में ऐसा असर डालना चाहिए कि उनकी जिंदगी खराब। So sir, as of now आपका कोई पर्टिकुलर राइटिंग शेड्यूल है, लाइक दिन में आप कुछ घंटे डिवोट करते हैं, या फिर इट्स लाइक रैंडम कि कभी कोई थॉट आया तो फोन में या किसी डायरी में लिख लिया, फिर बाद में बैठ के लिख रहे हैं, लाइक हाउ डज इट गोज विथ यू? हाँ, मेरा काफी ऐसा कोई मेरा शेड्यूल तो नहीं है, बट मेरा हिसाब किताब थोड़ा रैंडम ना कह के स्पॉन्टेनियस कह लो, इन अदर वर्ड्स, कि जब माइंड में स्ट्राइक कर जाती है ना चीज तो फिर मैं वो पूरी करके ही उठता हूँ। फिर वो टाइम कुछ भी हो सकता है, फिर मैं उस चीज को माइंड से निकलने नहीं देता। बेसिकली मेरे से आते रहता है कोई जैसे थॉट मेरे दिमाग में आया ऐसा और मुझे लगता है अरे इस पे लिखना चाहिए, तो पहले अराउंड उसकी थोड़ी बैक स्टोरी बनती है माइंड में, पर्टिकुलर थॉट बनता है, उसका हल्का सा मैं थोड़ा ऐसे भी सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग कह लो या थिंकिंग ऑफ एन आर्टिस्ट कह लो कि अच्छा ऐसे 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 तो इसका कंक्लूजन ये होगा।
सारे पर्सपेक्टिव या फिर एज एन आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव देख के मुझे कंक्लूजन अपनी आर्ट में ये दिखाना है। तो जब मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का देख लेता हूँ चीज का, तो फिर वो पूरी चीज लिखता हूँ और फिर ही एंड बाय गॉड्स ग्रेस मोस्टली हो जाता है एक ही बार में, चाहे टाइम काफी लगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि जिद है कि नहीं अब शुरू कर दिया तो खत्म करना है। अगर माइंड मेरा थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ बीच में, या मुझे लगा कि यार नहीं मैं वो चीज अच्छे से नहीं दर्शा पा रहा जो मुझे दर्शानी है, तो मैं वहां पे रोक देता हूँ, फिर मैं बाद में करता हूँ। बेसिकली जब तक मतलब खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक आप चीजें कंक्लूड नहीं करते, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. So, sir, like as of now, we have talked about your book, about your journey, about your vision, about your personal branding, and everything. So now coming to your personal life, can you share with us like what was the most happiest moment of your life? Like there must be many, but अगर आप कोई एक single हमारे साथ share करें तो that would be really great. सिंगल भी तो सोचना पड़ जाता है। चलो सिंगल मोमेंट अभी तुम्हें लेटेस्ट ही बताते। 23 तारीख को अभी दिसंबर में मेरा डिवोर्स हो गया। तो पिछले कई सालों का तो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था। सीरियस होने की जरूरत नहीं, सच में था। तुम्हें पता नहीं है कितना खुश हूं मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा, ये लॉज ऐसे पता लगा दोबारा पकड़ लिया बिना बात के। और क्या। ओके सर। एंड नाउ कमिंग टू द टाइम सर, जब आपकी बुक रिलीज होने वाली थी, लाइक यू नो लेट्स से अगर कल रिलीज होने वाली थी, तो आज आपके माइंड में क्या चल रहा था? लाइक आप स्ट्रेस थे, रिलैक्स थे, एक्साइटेड थे, यू नो आपने कुछ ऐसे बेंचमार्क सेट किए हुए थे कि मेरे बुक को इतना सेल करना पड़ेगा, या मुझे लाइक व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड एट दैट टाइम? मैं काफी संतुष्ट बैठा हुआ था कि हाँ बुक हो रही है पब्लिश, और स्ट्रेस किसी चीज का ऐसा नहीं था। स्ट्रेस इसलिए नहीं था कि काफी चीजों का आइडिया है काफी साल से इस इंडस्ट्री में काम करके, कि कैसे कैसे चीजें होनी है, कैसे करनी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें, काफी सारे सॉन्ग्स और पोएम्स रिलीज करके और बुक्स में भी अपनी राइटिंग्स देके, कि एक आइडिया रहता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। पर ऑफ कोर्स कि मार्केटिंग और इसका चिंता तो थी भाई, ठीक से हो, लोगों तक पहुंचे और अच्छे से हो। तो उसका थोड़ा था मुझे शुरू से कि अच्छे से हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा रीडर्स तक मैं पहुंच पाऊंगा ना, तभी एक ऑडियंस सेट होगी जो कि ये जानेगी कि मैं कौन हूं, और तभी वो ऑडियंस मेरे को मिलेगी कि मैं ये जान पाऊं कि लोगों को मेरी आर्ट असल में लग कैसे रही है। क्योंकि बहुत कम लोग अगर देखे और उन्हें पसंद आ रही है तो ठीक है, खुशी बहुत होती है, लेकिन एक प्रॉपर आइडिया नहीं लगता एक आर्टिस्ट को जब तक काफी ज्यादा लोगों ने वो चीज आपकी देखकर, सुनकर या पढ़कर आपको रिव्यू ना दिया हो। क्योंकि जितना बड़ा आपका ऑडियंस होगी उसी हिसाब से आपको पता लगेगा कि जनरलाइज्ड पॉपुलेशन आपको कैसे रिसीव कर रही है, और वो बहुत जरूरी है। उसके लिए तो खैर देखो धक्का मुक्की सब आर्टिस्टों को आजकल करनी पड़ती है, पर हाँ स्ट्रेस इन चीजों का नहीं लेता मैं। बस माइंड में रहता है कि हाँ जो अच्छे से अच्छा कर पाए उतना जरूर करें, बट स्ट्रेस लेना इस चीज का आई डोंट थिंक उससे कुछ फायदा होना है। इंस्टेड वो टाइम आप अपने यू नो वर्क को पॉलिश करने में लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ अपना जैसे आजकल होती हैं पब्लिशिंग, मार्केटिंग और प्रमोशंस, उस हिसाब डे टू डे अपना करंट जो चीजें चल रही हैं उससे अवेयर रहें, और उनके लिए आप अगली बार और बेहतर कैसे वो सारी चीजें करा सकते हैं उसके लिए चाहे सेविंग्स करें, चाहे तैयारी करें, चाहे कनेक्शंस बनाएं। So sir, as of now, what's your current mental state? Like as a person, as a author, आप किन चीजों पर अभी फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में?
अभी मेरा फोकस सबसे ज्यादा तो टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम एटलीस्ट इंडिया, इन्हीं चीजों पे है। यही, क्योंकि एक ना, अगर सही मायने में सोचो तो कहीं आप देखोगे पॉलिटिशियंस खाली धर्म की बात करके ऐसी तैसी फेर रहे हैं देश की, कहीं आप देखोगे बस जात के नाम पे फेर रहे हैं, कहीं आप देखोगे एक दूसरे के नाम पे फेर रहे हैं। हाँ हाँ। और पिछले 1-2 साल में तो जो हाल हुए हैं देश के वो आपने देख ही लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप की हो, चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे कास्ट बेस्ड हो, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, चाहे कलर बेस्ड हो, चाहे आप जो काम कर रहे हैं उस पे बेस्ड हो, तो ये सारी हटे। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि वोटर्स जो हैं, मतलब हम जो सिटीजन्स हैं ना भारत के, हमें इतना अवेयर होना चाहिए हर चीज के बारे में कि यार असल में भारत आगे बढ़ेगा कब। तो उस बेसिस पे हमें वोटिंग करनी चाहिए, ना कि हम बस अगले 100 साल भी यही सोचते रहे, अच्छा मैं बस इसी को वोट दूंगा क्योंकि ये तो अपना नेता है, हाँ। अच्छा तू उसी को देगा क्योंकि ये तो तेरी जात। उससे अभी भी भारत आगे तो पता नहीं, पिछले अब देख लो जितने भी साल आजादी को हो गए, कोई ऐसी वो नहीं हुई कि बाकी देशों के तौर पे अगर कंपेयर किया जाए तो लगे यार इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली। सही बात है। ये बहुत बुरी लगती है बात खुद भी कहने में एज अ सिटीजन, पर सच है। सही। आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज बना दो, पर आपने यही करना है कि जात के नाम पे मार दो, जेंडर के नाम पे मार दो, ये कर दो वो कर दो, तो आप चाहे मंगल पे जाके रह लो, उसको तरक्की थोड़ी कहते हैं। दिमागी तरक्की चाहिए इस देश को, वो चाहिए मुझे। और उसके लिए हो सकता है ये पॉडकास्ट सुन के पता नहीं क्या क्या हो जाए, पर ये चाहिए चीजें। इस देश को दिमागी तरक्की चाहिए, बिल्कुल। जातीय धर्म की तरक्की नहीं चाहिए। वो है हर धर्म की शुरू से ही तरक्की, वो है ही। सही बात। वो इतनी तरक्की पे था कि वो धर्म है तो ठीक है, उसे और जरूरत नहीं। हाँ। जिसको बचना है वो धर्म के ये जो नेता रेप केस और मोलेस्टेशन और इन सब में जो जेल जा रहे हैं ना, उनकी पूजा करनी छोड़नी चाहिए पहले तो। भगवान है सब में, है सबके दिल में, कण कण में। आपको अलग से किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को ही पूजो। ऐसे लोगों को मत पूजो जो आपको पागल बना के फिर चले जाते हैं और फिर अगले साल टैक्स आपका ही कट के उनके कई हजार करोड़ चुका रहे होते हैं आप ही लोग। सही बात है। वो भी किस बात पे, बस ऐसे ही एंजॉय। तो दिमागी तरक्की की जरूरत है इस देश को। True. Yeah, so sir, my last question to you of this podcast is like, what are your advices for the upcoming authors? Like, बहुत सारे लोग अभी इस पॉडकास्ट को जब सुनेंगे तो they must be holding their first draft in their laptop, उनकी डायरी में होगा, या फिर वो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइसेस हैं? एडवाइस तो क्या, मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी लिखेंगे ना, तो आप खुद के माइंड में पहले क्लियर करो कि वो आपके वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, आपके लिखने से आपको कैसे इफेक्ट करेगा, और जब आपका लिखा हुआ कोई पढ़ेगा तो उसको कैसे इफेक्ट कर सकता है। एज अ राइटर आप ये जरूर सोचें कि जो पढ़ रहा है ना, जो रीडर है, उसको क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी चीज पढ़ के। और एज अ राइटर मैं नहीं चाहूंगा कि मैंने कुछ लिखा हो तो उससे रीडर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े, या मेरी बात का एक पढ़ने वाला कुछ ऐसा मतलब निकाले जिससे कि लाइफ बेहतर ना हो बल्कि और कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसकी लाइफ में, इन थॉट्स कि उसकी सोच में नेगेटिविटी आ जाए, या किसी के बारे में वो पहले से प्रेजुडिस रखना शुरू कर दे, नहीं ये तो ऐसा, ये तो वैसा। तो एक राइटर को ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो कंक्लूडिंग थिंग है ना, उसका रीडर क्या मतलब निकाले। उसको एज अ राइटर, एज अ आर्टिस्ट आप थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, हाँ फुली नहीं कर सकते, पर आप अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिए
कि जो आप कंक्लूजन दे रहे हैं या जो आप अर्थ बता रहे हैं ना अपनी चीज का, वो नेगेटिव ना निकले। ये बहुत जरूरी मानता हूं मैं तो। एंड एनीथिंग एल्स जो आप हमारे लिसनर्स को एडवाइस देना चाहेंगे? लिसनर्स को मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, लिसनर्स से मैं एडवाइस लेना चाहूंगा। आप पॉडकास्ट पे और इनको बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और आप लिसनर्स मुझे जो जो एडवाइस और सजेशन देना चाहे आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मेरा अगला काम भी आप लोगों के लिए ही होगा। तो बेहतर हो और अच्छा हो, आपको पसंद आए और जो चीज आपको चाहिए वो मैं और अच्छे से पेश कर पाऊं अपने तरीके से, जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने जाना है आपको और खुद को। तो मैं तो लेना चाहूंगा एडवाइस और सजेशन लिसनर्स से और रीडर्स से, और उनका शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि इस पॉडकास्ट पे आपने मुझे बुलाया, मुझे टाइम दिया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode, and if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms, and don't forget to buy and read the book. आप जैसे Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें आकाशदीप, या फिर आप सर की बुक भी सर्च कर सकते हैं। बुक का नाम है डाइव इन द डेप्थ। बुक आ जाएगी, जरूर खरीदिए, पढ़िए और अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। Thank you so much, sir, for coming on our show. Thank you for enlightening us with your thoughts. My pleasure. Thank you so much.